Hello friends, today we are recording a revision lecture for your RCM chapter. So let's start. RCM में हमारे पास दो टाइप के RCM है, एक है 9.3 वाला 9.4 वाला. In this lecture we'll be recording your revision for 9.3. Fine. And in 9.3 there are specified goods and services on which RCM has been imposed, right? But in our syllabus for CA Inter, we are only concerned with our RCM related to services. Goods ka RCM is not a part of our syllabus, so I'll be covering only your service related part. So let's start. The notification number which you have to remember is notification number 13/2017 CT rate. Whenever you are answering a question related to your RCM chapter, this notification number is very important. Let's start. So first service which is under RCM is your GTA service. First RCM service is your GTA, that is your goods transportation agency. If goods transportation agency provides services to whom? To factory, society, cooperative society, registered person, registered as in registered under GST, body corporate, a partnership firm, or casual taxable person, in that case the recipient will be liable to pay GST under RCM. Now in this case what happens is, now there is a supplier, there is a recipient, right? And there is a goods transport agency who will be doing what? Transporting goods from supplier's location to the recipient's location. In this case the question may arise, who is the recipient? The person who is supplying the goods or the person who is receiving the goods? So the answer to this is whoever, the person who pays to the GTA for freight will be the person liable to pay GST under RCM. He is the service receiver. If the person who is receiving the goods pays to the GTA, he'll be the service recipient. If the supplier pays to the GTA, then he will be treated to be the recipient. So basically whoever will be paying to GTA, he'll be the service recipient in our case. In this case, GTA should not be paying tax under 12%. So if he is paying under 12%, then he'll be liable to pay GST under FCM, that is your forward charge. Then the GTA will only be paying GST. If he is paying under 5%, then the recipient will be liable to pay under RCM. Now there are exceptions wherein this RCM won't apply, that is supply to an unregistered person, including unregistered CTP, that is your casual taxable person. So in case you supply to unregistered person including an unregistered CTP other than factory, मतलब factory वाला unregistered है तो नहीं, क्योंकि he is a recipient which is specified. अगर society वाला है तो भी नहीं, RCM लगेगा. हाँ, he has to be unregistered and should not fall in any of these categories. Only then he will not be required to pay GST under RCM. कोई फैक्ट्री है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर लगेगा क्या? तो आंसर इज यस, उस पर RCM आ जाएगा. ठीक है. या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो इन दैट केस GTA इज नॉट टू बी पेड, RCM इज नॉट टू बी पेड. स्पेसिफाइड गुड्स, कुछ गुड्स को उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया. ये सारी चीजें हम एग्जेम्पशन के चैप्टर दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में पढ़ने वाले हैं. अदर देन गुड्स, अगर सिंगल कैरेज का फ्रेट 1500 रुपए या उससे कम का है तो इन दैट केस GST RCM विल नॉट बी कमिंग इन केस ऑफ GTA सर्विस. एंड एक कंसाइनमेंट कब, अगर एक गाड़ी में एक ही कंसाइनमेंट जा रहा है तो 1500 रुपए. अगर एक गाड़ी है और ये कंसाइनमेंट बहुत सारे हैं तो अगर ये इंडिविजुअल कंसाइनमेंट की वैल्यू 750 से कम है तो इन दैट केस यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे GST अंडर RCM. सो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है जिनके केस में एग्जेम्पशन है, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है जिनके केस में एग्जेम्पशन है. सो टू समराइज, GTA अगर जो हमने स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को बोला इनको सप्लाई करता है एंड ही इज नॉट पेइंग GST अंडर 12% तो RCM लग जाएगा. अगर किसी और को देता है अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट तो क्या हो जाएगा? तो GST RCM में भी नहीं पे करना है, FCM में भी पे नहीं करना है अगर अदर देन दीज पीपल है.
एंड अगर वो 12% में पे करता है और ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में देता है तो क्या होगा, GTA विल बी रिक्वायर्ड टू पे अंडर FCM, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज. सो कंक्लूजन देखिए क्या लिखा है, चार्ज RCM only if GTA is not paying GST at 12%. Person registered only for the purpose of paying TDS is not required to pay RCM. मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसने GST में रजिस्ट्रेशन लिया अंडर सेक्शन 24 only and only for the purpose of paying TDS, he will not be required to pay GTA का RCM. Coming to the next service, that is related to your advocate service. अगर कोई इंडिविजुअल या फर्म ऑफ एडवोकेट है इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, वो अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे जिसका टर्नओवर इज लेस देन दी स्पेसिफाइड लिमिट एंड उसके वजह से उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट. अगर ग्रेटर, देखो सुन लेना, अगर कोई फर्म है या इंडिविजुअल है वो किसी बिजनेस एंटिटी को दे और रजिस्टर्ड है, बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर 40 से ज़्यादा है, 20 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख, तो ये लिमिट्स है रजिस्ट्रेशन के लिए. गुड्स के केस में 40 लाख का लिमिट है इफ़ ही इज ओनली अ सप्लायर ऑफ गुड्स, सर्विसेज के केस में 20 लाख का है, एंड इन स्पेसिफाइड स्टेट्स 20 लाख का लिमिट एंड 10 लाख का लिमिट वो भी है. तो दीज आर सेपरेट लिमिट्स, ये हम रजिस्ट्रेशन का चैप्टर जब करेंगे रिविजन तो उसमें देख लेंगे. बट फिलहाल के लिए कोई ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर ज्यादा है फ्रॉम दी रजिस्ट्रेशन लिमिट का थ्रेशोल्ड, तो इन दैट केस RCM विल बी कमिंग. एग्जेम्पशंस क्या है, किसी हाउस होल्ड एंटिटी को दिया तो आएगा क्या, कोई एडवोकेट है उसने डिवोर्स का केस लड़ लिया, ठीक है, या कोई डिस्प्यूट था बिटवीन टू हाउस होल्ड एंटिटीज, तो इन दैट केस लगेगा क्या, तो आंसर इज नो, RCM विल नॉट अप्लाई. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी को अगर दिया तो लगेगा क्या, तो आंसर इज नो. अगर इन लोगों को सप्लाई किया जाए तो नहीं लगेगा. या कोई बिजनेस एंटिटी है जिसका थ्रेशोल्ड से कम है टर्नओवर, उनको कोई सर्विस दी गई बाय इंडिविजुअल और फर्म ऑफ एडवोकेट, इन दैट केस GST विल नॉट बी पेड अंडर RCM. एग्जेम्प्ट है ये सारे कैटेगरीज में, तो GST भरने की बात ही नहीं आएगी. और एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे तो इवन दैट इज एग्जेम्प्ट. बट अगर कोई सीनियर एडवोकेट किसी इंडिविजुअल या फर्म ऑफ एडवोकेट को दे तो दैट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट, बट दैट विल बी अंडर RCM एंड द पर्सन फॉर whom he has taken that service will be liable to pay GST. मतलब समझिए, कपिल सिब्बल जी का एग्जाम्पल लेते हैं. कपिल सिब्बल इज let's say a senior advocate, he gives a service to let's say an advocate who is not a senior advocate or a firm of advocate. Kapil Sibal, that is a senior advocate giving services to a advocate firm in relation to an business entity जिसका कोई केस चल रहा है, right? तो in that case अब सर्विस ली किसने, इंडिविजुअल और दैट फर्म ऑफ एडवोकेट ने कपिल सिब्बल की सर्विस ली. बट इन दिस केस डीम्ड रेसिपिएंट विल बी दैट बिजनेस एंटिटी जिसके लिए ये सर्विस दिया गया, एंड ही विल बी लायबल, that is the business entity will be liable to pay GST under RCM. So that is what is in written. RCM always if recipient is a business entity having aggregate turnover greater than the threshold limit. If legal services supplied by senior advocate to an advocate or a firm of advocate, business entity is deemed recipient. That is the business entity जिसके लिए उन्होंने सर्विस ली है. फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे, ठीक है, किसी बिजनेस एंटिटी को, इट इज द सेम विच वाज रिटन ऊपर फॉर द एडवोकेट्स के केस में. तो अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे तो RCM आएगा. अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया गया, मतलब हाउस होल्ड एंटिटी को दिया गया, तो देयर विल बी नो RCM, इट विल बी एग्जेम्प्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी या गवर्नमेंट एंटिटी, तो इन दैट केस नहीं लगेगा. स्मॉल एंटिटीज विद टर्नओवर लेस देन 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख जिनको थ्रेशोल्ड के नीचे हैं तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है फॉर एग्जांपल, तो इन दैट केस RCM विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये. अब फोर्थ वाले में आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर स्पॉन्सरशिप सर्विस. किससे रिलेटेड है? स्पॉन्सरशिप सर्विस से. तो स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को दी गई, किसको दी गई? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दी गई, ओनली देन RCM विल बी एप्लीकेबल. अगर किसी इंडिविजुअल को दी गई
देखो स्पॉन्सरशिप सर्विस किसी इंडिविजुअल को दी गई तो इट विल नॉट बी अंडर आरसीएम, इट विल ऑलवेज बी अंडर एफसीएम ओनली. Now, in this case, let's take an example of your Vivo IPL only. So, Vivo IPL, right? In this case, I want to answer who is giving the sponsorship service? Who is giving a sponsorship service? Is it Vivo or is it IPL? Sponsorship service कौन दे रहा है? Vivo, right? Answer is incorrect. Vivo is not giving the sponsorship service. It is IPL who is giving the sponsorship service. किसको? Vivo को. तो देखो अब Vivo क्या करेगा? पैसा देगा IPL को, ठीक है, और बोलेगा कि हमारा नाम आप जब जब IPL का नाम आएगा तो हमारा नाम लेना. मतलब स्पॉन्सरशिप सर्विस कौन दे रहा है? इट इज दी IPL इज गिविंग स्पॉन्सरशिप सर्विस. अब ये सर्विस अगर किसी इंडिविजुअल को दी गई होती, समझो सुनील राजपुरोहित को दी गई होती, तो इन दैट केस इट वुड हैव बीन अंडर FCM एंड IPL विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे GST. बट ये अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई, जैसे वीवो को दी, पेप्सी को दी, राइट, इन दैट केस हु विल बी पेइंग इट? दी बॉडी कॉर्पोरेट विल बी लायबल टू पे GST अंडर RCM. यही अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को दिया गया, LLP को दिया गया, इन दैट केस दी पार्टनरशिप फर्म और LLP will be paying GST under RCM. I hope this point is clear. चलिए, moving to the next part. So next point से पहले मैं पहले 5A ले लेता हूँ, फिर 5 पे जाएंगे. 5 में दे रहा 4, 5, 5A, 5B, 5C. तो पहले मैं 5A कवर कर रहा हूँ, उसके बाद 5 पे जाते हैं. चलिए, तो 5 में बोलता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी इज दी सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी दिखे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दी लोकल अथॉरिटी इज दी सर्विस प्रोवाइडर. रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन. कैसा? रजिस्टर्ड पर्सन. इसको किस चीज की सर्विस दी गई है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग की सर्विस दी गई है. किस चीज की? इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग की सर्विस. तो in that case the registered person will be under RCM liable to pay GST. ठीक है, अगर यही अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया तो लगेगा क्या RCM? तो आंसर इज नो. और यही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को दिया गया तो लगेगा क्या? तो आंसर इज नहीं लगेगा. इट विल बी फॉलोइंग अंडर द एग्जेम्पशन. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सो RCM एप्लीकेबल ओनली इन केस रेसिपिएंट बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन. अदर देन रजिस्टर्ड होगा तो उसके केस में नहीं लगेगा. चलिए, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स है. सर्विस किसको दे रहे हैं? बिजनेस एंटिटी को. नीचे और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा था, यहाँ पे बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है. बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं, तो इन दैट केस RCM विल बी एप्लीकेबल एंड द बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे GST अंडर RCM. बस इसमें कुछ एग्जेम्पशंस है जो मैंने यहां पे लिख लिए हैं. अगर सर्विस दी गई किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को तो RCM में नहीं आएगा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी सर्विस दे रही है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को ही तो RCM नहीं लगेगा. स्मॉल बिजनेस एंटिटी जिसने टर्नओवर की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो उसके केस में नहीं लगेगा. एंड अगर ये लोगों ने जो सर्विस दी उसका कंसिडरेशन जो ये लोग चार्ज करते हैं इज लेस देन 5,000 रुपीज, तो इन दैट केस RCM विल नॉट अप्लाई. इज दिस पॉइंट क्लियर? इसके अलावा देर इज अ फ्यू एक्सक्लूजन्स विच आर रिटन ओवर हियर. दैट इज योर PPT सर्विस एंड योर इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस. इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस को एक्सक्लूजन में इसलिए लिख दिया है बिकॉज नीचे एक सेपरेट एंट्री है इन योर नोटिफिकेशन 13/2017 जो उसको एग्जेम्प्ट कर रहा है, जो उसको अलग से RCM में ले रहा है, राइट. तो इसलिए ये एंट्री के अंडर उसको बाहर कर दिया गया कि एग्जेम्पशन में नहीं आएगा. दूसरा, PPT सर्विसेज में पोस्टल डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज होगी या पोर्ट एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर रिलेटेड सर्विसेज होगी तो उसमें RCM में GST नहीं पे किया जाएगा, इसमें FCM में ही पे किया जाएगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ठीक है, समझ में आया? चलिए एक बार फिर से पॉइंट बोल देता हूं.
चलिए बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे, किस चीज की? इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग की। तो इन दैट केस रजिस्टर्ड पर्सन विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। यही लोग अगर किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को दे तो आरसीएम में आएगा क्या? तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, आरसीएम में नहीं आएगा। अगर यही लोग किसी गवर्नमेंट एंटिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को दे तो आएगा क्या? तो आंसर इज नहीं आएगा आरसीएम। चलिए उसके बाद हमने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी सर्विस दे रहे हैं किसको? बिजनेस एंटिटी को। ठीक है, कोई भी सर्विस हो सकती है, तो इन दैट केस आरसीएम विल अप्लाई। बट अगर ये नॉन बिजनेस एंटिटी को दी तो आरसीएम नहीं आएगा। यही अगर दिया गया जिसकी कंसिडरेशन 5,000 से कम की थी तो आएगा क्या? तो आंसर इज उस पर आरसीएम नहीं आएगा। अगर किसी स्मॉल बिजनेस एंटिटी को दिया गया जिसने टर्नओवर के वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, थ्रेशोल्ड का बेनिफिट उठाते हुए, तो आएगा क्या? तो आंसर इज नहीं आएगा। एंड उसके अलावा देयर इज पीपीटी सर्विस। अगर पीपीटी सर्विस दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, तो इन दैट केस पीपीटी विल गो अंडर एफसीएम। पीपीटी मतलब क्या? इट इज योर पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज या एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, ऑल दीस वन। फिर पोर्ट एयरपोर्ट जो सर्विसेज देते हैं, ठीक है, या वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट एयरपोर्ट, तो दैट विल बी अंडर एफसीएम। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स हो रहा है तो इवन दैट इज केप्ट आउटसाइड आरसीएम। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए सर, फिर आते हैं 5B पे। 5B बोलता है अगर सर्विस प्रोवाइडर कोई भी व्यक्ति है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है? प्रमोटर। ठीक है, इसको किस चीज की सर्विस दी है? तो ट्रांसफर ऑफ टीडीआर और एफएसआई। टीडीआर का मतलब है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, और एफएसआई का मतलब है फ्रीली सेलेबल एरिया, राइट, या फ्री सेलेबल इंडेक्स जिसको बोलते हो, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो टीडीआर या एफएसआई बेच दिया गया, किसने? कोई भी व्यक्ति ने दे दिया। किसको दे दिया? किसको दे दिया भाई? प्रमोटर को दे दिया। तो इन दैट केस आरसीएम विल अप्लाई एंड द प्रमोटर हु इज द रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। फिर 5C की बात है, एनी पर्सन क्या कर रहा है? प्रमोटर को सर्विस दे रहा है, किस चीज की? लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 ईयर्स और मोर, जिसमें अपफ्रंट अमाउंट पे किया जाएगा, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? आरसीएम लग जाएगा। चलिए सर, पहले 10 तक एंट्रीज कर लेते हैं एंड देन वील रिवाइज ऑल दी एंट्रीज दैट वी हैव डन सो फार। चलिए, 6 सर्विस इज रिलेटेड टू योर डायरेक्टर। डायरेक्टर अगर सर्विस दे किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर कंपनी को, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी। सी, बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, योर कंपनी इज अ पार्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। क्या बोल दिया सर आपने? देखो, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई लॉ के थ्रू बनी हुई एंटिटी होती है, उसको बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे हमारी आरबीआई बनी हुई है, ठीक है, जैसे हमारी एसबीआई बनी हुई है, जैसे हमारी आईसीएआई बनी हुई है, ऑल दीज आर फॉर्म्ड अंडर सेपरेट लॉ, राइट? सो दीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स। एंड कंपनी, समझो रिलायंस इंडस्ट्री, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड अंडर अ statute, that is your Companies Act, right? So even that is a body corporate, but it doesn't mean that every company is a body corporate, but सारी body corporate जो होगी वो कंपनी ही होगी, ये निष्कर्ष निकालना गलत है। समझ रहे हो क्यों? बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंडर ही बनती है, दूसरे एक्ट के अंडर भी बनी हो सकती है। जो डायरेक्टर किसी बॉडी कॉर्पोरेट का या फिर कंपनी का जो सर्विस दे रहा है, किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को या कंपनी को, तो इन दैट केस आरसीएम विल अप्लाई। एंड कौन जीएसटी पे करेगा? तो द कंपनी दैट इज द सर्विस रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये क्या लिख दिया? तो देखो, जो लोग है ना, 2 टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, राइट? एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। जो लोग ना एम्प्लॉय के तरह काम करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, जो कंपनी के एम्प्लॉयज के जैसे काम करते हैं, तो इन दैट केस दैट विल फॉल अंडर शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 1, सर्विसेज विच आर गिवन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो होता है ना, उसमें फॉल कर जाएगा, और वो तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी है, तो उसमें आरसीएम एफसीएम की बात ही नहीं आएगी। तो बात किसकी है? तो ये बात हो रही है कौन से वाले लोगों की? बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनीज जो होती है, राइट? इनको जो अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब जो
एम्प्लॉयज नहीं है, वो लोगों के केस में जीएसटी आरसीएम में आएगा। मतलब देयर आर टू टाइप्स, वन इज योर डायरेक्टर्स हु आर एम्प्लॉयज, तो उनके केस में तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। दूसरे वाले होते हैं जो सिटिंग फीस, एम्प्लॉयज नहीं है बट सिटिंग फीस के तौर पे पैसा ले रहे हैं, तो इन दैट केस आरसीएम विल अप्लाई एंड हु विल बी पेइंग जीएसटी, बॉडी कॉर्पोरेट और द कंपनी विल बी पेइंग जीएसटी। फिर आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे जो है इंश्योरेंस वाली सर्विस। तो इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है, राइट। अब एलआईसी के बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स होंगे, राइट, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को। सो ये जो सर्विस होगी इसके ऊपर आरसीएम में जीएसटी कौन पे करेगा, द इंश्योरेंस कंपनी विल बी पेइंग जीएसटी। फिर रिकवरी एजेंट्स अपॉइंटेड बाय बैंक, ये लोग क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं, और ये लोग सर्विस दे रहे हैं किसको, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को सर्विस दे रहे हैं। तो इन दैट केस द सर्विस विच दे आर गिविंग, इसके ऊपर जीएसटी हु विल बी पेइंग, so the banks or FIs or NBFCs will be liable to pay GST under RCM. Then coming to your entry number 9(9)(a), we have a music composer या फिर फोटोग्राफर या फिर आर्टिस्ट जो सर्विस दे रहा है किसको, म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, किस चीज की सर्विस, यूज ऑफ कॉपीराइट पर्टेनिंग टू ओरिजिनल वर्क। तो इन दैट केस GST will be paid under RCM by the music company or the producer। किस चीज के लिए, जो भी ये आर्टिस्ट लोगों की या जो फोटोग्राफर्स होते हैं या जो म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, इन लोगों की सर्विस जो भी लेंगे ये लोग, तो उसके ऊपर आरसीएम में जीएसटी पे करनी पड़ेगी। Earlier, author was also a part of this entry only, but now they have with amendment introduced a new entry wherein ऑथर हैज बीन कवर्ड सेपरेटली। और क्या बोला है देखिए, ऑथर जो सर्विस देगा किसको, पब्लिशर को, यूज ऑफ कॉपीराइट पर्टेनिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, किसका, लिटरेरी वर्क का देगा। तो इन दैट केस अगर ऑथर रजिस्टर्ड है तो ही कैन ऑप्ट टू पे जीएसटी अंडर एफसीएम, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में, मतलब ऑथर खुद जीएसटी भर दे। बट अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ही कैन गो फॉर आरसीएम ऑल्सो। सो देखिए क्या लिखा है, आरसीएम नॉट एप्लीकेबल इफ ऑथर इज रजिस्टर्ड, पहला ऑथर रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, फाइल द डिक्लेरेशन इन एनेक्सर 1, मतलब डिक्लेरेशन दे दे कि मैं जीएसटी आरसीएम में नहीं एफसीएम में पे करना चाहता हूं। एंड ऑप्शन फॉर पेइंग जीएसटी अंडर एफसीएम लॉक इन हो जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। एंड उसको अपने इनवॉइस पे लिख के चलना होगा कि मैंने जीएसटी एफसीएम में पे की हुई है। देखो अगर वो रजिस्टर्ड है और वो ये सारी चीजें नहीं करता तो क्या होगा, तो एफसीएम में पे नहीं होगा बट आरसीएम में दी पब्लिशर विल हैव टू पे। बट अगर उसने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, उसने जीएसटी का डिक्लेरेशन दे दिया अपने सीजीएसटी या एसजीएसटी के ऑफिसर को, कमिश्नर को, या फिर एक तो रजिस्टर्ड, दूसरा डिक्लेरेशन दे दिया विद दी कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर जो भी है, उसके बाद ऑप्शन ऑप्ट करने के बाद 1 साल तक वो बाहर नहीं आ सकता। मतलब कुछ के लिए एफसीएम कुछ के लिए आरसीएम, ऐसा नहीं, सबके लिए एफसीएम में ही पे करना पड़ेगा। एंड अपने इनवॉइस पे डिक्लेयर करके चलना होगा कि ही इज पेइंग जीएसटी अंडर एफसीएम, तो ही विल नॉट बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ही मतलब कौन, दी पब्लिशर। एंड ये सब काम कौन करेगा, ऑथर करेगा। ये सारी चीजें समझ रहे हो, चलिए दिस इज ओनली फॉर ऑथर। बाकी के लोग जो है दैट इज योर कंपोजर और फोटोग्राफर या कोई आर्टिस्ट है तो उसके केस में ये ऑप्शन नहीं है, उसके केस में इट विल ऑलवेज फॉल अंडर आरसीएम कैटेगरी। 10th एंट्री इज वेयर इन ओवरसीइंग कमिटी प्रोवाइड सर्विसेज टू आरबीआई। किस तरह ये बेसिकली फॉर्म किया गया था, फॉर स्ट्रेस्ड एसेट से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू करने के लिए, या उनके रिलेटेड क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो ओवरसीइंग कमिटी इज द सर्विस प्रोवाइडर, दे किसको रही है, आरबीआई को दे रही है। तो इन दैट केस आरबीआई इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। सो 10 एंट्रीज हमने अभी तक देख ली है। कौन कौन सी 10 एंट्रीज है, तो पहली एंट्री जो हमने देखी दैट वाज रिलेटेड टू जीटीए। जीटीए अगर 5% वाला रेट में है और स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को दे रहा है तो इन दैट केस आरसीएम विल बी एप्लीकेबल। बट अगर वो
किसी टीडीएस के लिए, टीडीएस डिडक्ट करने वाले व्यक्ति को दे रहा है जो सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, तो इन दैट केस आरसीएम विल नॉट बी अप्लाई। फिर सेकंड था जिसमें हमने देखा था एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो इन दैट केस आरसीएम विल बी कमिंग। बट अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया या फिर जो थ्रेशोल्ड के नीचे वाले लोग हैं तो उनको दिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, गवर्नमेंट एंटिटी को दिया, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी को दिया, तो इन दैट केस आरसीएम विल नॉट बी अप्लाई। एंड अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे तो आरसीएम में नहीं आएगा। बट अगर एक सीनियर एडवोकेट को दे इन रिलेशन टू अ बिजनेस एंटिटी का केस, तो इन दैट केस डीम्ड रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी को मान लिया जाएगा। उसके बाद तीसरा था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको सर्विस दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को, तो आरसीएम आएगा, बाकी सारी चीजें सेम। अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो नहीं लगेगा, अगर जिसका टर्नओवर इज लेस देन दी थ्रेशोल्ड लिमिट तो नहीं लगेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी को दिया तो नहीं लगेगा। उसके बाद फोर्थ वाली एंट्री जो हमने बात की वो रिलेटेड थी आपके, फोर्थ वाली किससे चीज थी, हाँ फोर्थ वाली स्पॉन्सरशिप वाली सर्विस थी। स्पॉन्सरशिप के केस में अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको दी गई, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म को दी गई तो ही आरसीएम लगेगा, नहीं तो आरसीएम में नहीं जाएगा, वो एफसीएम में चले जाए। फिर हमने 5 पढ़ी, 5 में 4 थी, 5A, 5A, 5B, 5C। 5 वाला जो था वो किसके बारे में बात कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी किसको दे रही है, बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है, तो क्या होगा, वो चले जाएगा अंडर आरसीएम। बट अगर पीपीटी वाली सर्विस है तो वो एफसीएम में ही रहेगी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग की सर्विस है तो वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, वो किस में कवर्ड है, 5A में। तो 5A क्या बोलता था, अगर ये लोग तीनों सर्विस दे रहे हैं किसको, एक रजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो आरसीएम लग जाएगा, बिजनेस एंटिटी नहीं, रजिस्टर्ड एंटिटी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी को दिए तो नहीं, तो लग जाएगा आरसीएम। अब इसमें एक्सेम्पशन था कि अगर जिसको दिया वो अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम में नहीं आएगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइडर है, रेसिपिएंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, इन दैट केस ऑल्सो आरसीएम विल नॉट अप्लाई। फिर 6th वाला हमने देखा, 5B, 5C बाकी है। तो एनी पर्सन गिविंग टू प्रमोटर किससे रिलेटेड, टीडीआर या एफएसआई की सर्विस दे रहा है, तो इन दैट केस आरसीएम विल अप्लाई। अगर एनी पर्सन लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड दे रहा है किसको, प्रमोटर, तो उसके केस में भी आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। फिर आते हैं 6th वाली एंट्री में, 6th वाली वाज रिलेटेड टू योर डायरेक्टर, डायरेक्टर की सर्विस दी गई किसको, बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को, तो इन दैट केस बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। फिर 7th एंट्री हमने पढ़ी थी रिलेटेड टू योर इंश्योरेंस एजेंट गिविंग सर्विसेज टू इंश्योरेंस कंपनी, आरसीएम विल अप्लाई। रिकवरी एजेंट गिविंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसी या फिर एफआई, दैट इज योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आरसीएम आ जाएगा। फिर 9 में देवर 2, 9 में म्यूजिक कंपोजर, आपका आर्टिस्ट, फोटोग्राफर सर्विस दे रहा है किस चीज की, यूज ऑफ कॉपीराइट रिलेटेड टू हिज ओरिजिनल वर्क, तो इन दैट केस दी रेसिपिएंट दैट इज द म्यूजिक कंपनी और दी प्रोड्यूसर विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। उसके बाद ऑथर है, ठीक है, ऑथर सर्विस दे रहा है किसको, पब्लिशर को, यूज ऑफ कॉपीराइट पर्टेनिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। देखो बेच दिया ना तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एनी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स, और वो यहाँ पे नहीं आने वाला। ये क्या यूज दे रहा है, मतलब ये सर्विस हो गई, सो यूज इज बीन ट्रांसफर्ड, एंड इनके केस में ऑथर ने अगर यूज ट्रांसफर कर दिया है तो इन दैट केस आरसीएम नॉट एप्लीकेबल। अगर ऑथर ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसने एक डिक्लेरेशन फाइल कर दिया एनेक्सर 1 में किसको, टू दी ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर, जो उसका कमिश्नर या सीजीएसटी या एसजीएसटी का जो भी कमिश्नर होगा जहाँ पे उसका ज्यूरिसडिक्शन है, या ये जो भी ऑप्शन होगा उसका लॉक इन पीरियड कितना होगा, 1 साल के लिए होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग दी, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, एंड लास्ट वाला है उसको इनवॉइस पे डिक्लेयर करके चलना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आरसीएम नहीं लगेगा, एंड ऑथर जीएसटी में नॉर्मल चार्ज में ही पे कर देगा। उसके बाद 10th वाला जो था वो रिलेटेड था ओवरसीइंग कमिटी सर्विस दे रही है किसको, आरबीआई को, इन दैट केस आरबीआई विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। मूविंग टू दी नेक्स्ट एंट्रीज, 11th वाली एंट्री बात करती है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, डीएसए जो होते हैं, इंडिविजुअल डीएसए सर्विस दे रहे हैं बैंक या फिर एनबीएफसी को,
In that case, RCM will apply and bank and NBFCs will be liable to pay GST under RCM. बट अगर ये जो डीएस है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए तो ही आरसीएम लगेगा. अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो एफसीएम में कवर हो जाएगा. फिर आता है 12वीं सर्विस पे जो बात करती है बिजनेस फैसिलिटेटर्स. ये सर्विस दे रहा है किसको? बैंकिंग कंपनी को. तो इन दैट केस RCM will be paid by banking company. 13th is agent of business correspondent is giving service to business correspondent. So in that case business correspondent will be liable to pay GST under RCM. दोनों में डिफरेंस देखिए. 12th और 13th में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. 12th वाली बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहे हैं तो RCM. 13th वाले में बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एक एजेंट है वो सर्विस दे रहे हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट को तो आरसीएम में आएगी एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी. और बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो आगे देगा किसको? किसको भाई किसको? वो देगा बैंकिंग कंपनी को. तो इन दैट केस द बैंकिंग कंपनी विल नॉट बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम. इट विल बी द बिजनेस करस्पॉन्डेंट ओनली. दोनों में डिफरेंस है. Moving to the next entry, which is your entry number 14, that is related to your security personal service. Security personal service अगर कोई व्यक्ति देता है other than body corporate, किसको दे रहा है? registered person को. तो in that case RCM will be applicable, but it should only be related to giving of security personnel and should be given by whom? Should be given by a person other than body corporate. और किसको दिया होना चाहिए? registered person को. तो RCM लग जाएगा. No RCM on government entities registered only for TDS. मतलब सेक्शन 51 का जो compliance है that is TDS deduct करने के लिए registration लिया है. So in that case RCM will not apply. And अगर कोई composition dealer है तो in that case also RCM will not be applicable. चलिए फिर आते हैं 15th नंबर एंट्री पे. 15th नंबर एंट्री बोलती है कि अगर कोई नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है एंड सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट गिविंग सर्विसेज टू बॉडी कॉर्पोरेट, एंड किस चीज की सर्विस है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एट 5%. किस रेट पे? 5% के रेट पे. तो इन दैट केस आरसीएम विल बी एप्लीकेबल. देखो अगर बॉडी कॉर्पोरेट को देगी तो आरसीएम आएगा क्या? नहीं. इट शुड बी अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट. ओनली एंड ओनली देन आरसीएम विल बी एप्लीकेबल इफ renting which is done is at a rate of 5%. Last entry is your lender of securities. सर्विस दे रहा है किसको? बोरोवर को. तो बेसिकली यहाँ पे 3 लोग होते हैं. एक होता है लेंडर, एक होता है इंटरमीडियरी और एक होता है बोरोवर. लेंडर क्या करता है? अपनी सिक्योरिटीज इंटरमीडियरी के पास देता है. ठीक है. बोरोवर आएगा और ये इंटरमीडियरी के पास से वो सर्विस जो भी उसको सिक्योरिटीज चाहिए होंगी वो वहां से बोरो कर लेगा. अब देखो अगर बेचने की सर्विस हो ना, आप अगर स्टॉक मार्केट पे कोई शेयर्स सिक्योरिटीज खरीद लो या बेच दो तो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर जीएसटी बिकॉज इट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज. बट सेल हो रहा है तो नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज. बट यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज विच इज बीइंग डन. तो यहाँ पे लेंडर अपनी सिक्योरिटीज इंटरमीडियरी के पास देगा, इंटरमीडियरी से फिर बोरोवर उसको बोरो करेगा. तो इन दैट केस borrower is liable to pay IGST under RCM. borrower को IGST पे करना पड़ेगा RCM में and raise a self invoice for availing credit. लेंडर होता क्या? लेंडर जो होता है ना उसको पता नहीं कि उसकी सिक्योरिटीज कौन बोरो करके लेके जाएगा बिकॉज इट इज डन थ्रू एन इंटरमीडियरी. एंड लेंडर को पता नहीं बोरोवर कौन है, बोरोवर को पता नहीं लेंडर कौन है. तो यहाँ पे इनवॉइस रेज करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो इसको अगर FCM में रखते तो इट वुड हैव बीन wherein you have to know who the counterparty is, which is not the case in our this particular transaction. And अगर हमको पता नहीं है तो हम उसके इनवॉइस पे उसका GSTN नहीं डाल पाएंगे. GSTN नहीं डाल पाएंगे तो उसको क्रेडिट नहीं ले पाएगा वो बंदा. So because of these all reasons they have kept it under RCM. And क्या बोला है? बोरोवर जो है वो लायबल है पे करने के लिए IGST. क्या पे करेगा? IGST. C और S नहीं, IGST under RCM and raise a self invoice for availing credit. So these are your total 16 entries. 16 से actually ज़्यादा है but
These are your 16 entries which are very important for your CA inter examination, both your July as well as November. So with this friends, this particular revision lecture is over. I hope you liked it. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. Till then, thank you friends.